یسوع میں میرے تمام محترم عزیز بہن بھائیوں، یسوع میں خدا کا ہاتھ آپ سبوں پر ہے، اور اس واسطے ہم تمام سلامتی پاتے اور بہت ساری برکتوں سے معمور رہتے ہیں۔ آج خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم تمام کلام خدا میں سے اور خدا کے مکاشفات میں سے، خدا کے الہی بھیدوں میں سے ایک بھید کو جانیں۔ اور آج ہمارے پیغام کا مضمون ہے الوہیت کی ساری معموری۔ آج خداوند نے یہ موقع دیا ہے، اور گزرے دنوں میں خداوند نے اپنے روح کے وسیلہ سے مجھ پر آشکارا کیا، اور خداوند کی روح نے مجھے یہ کلام دیا تاکہ خدا کے اس بھید کو، خدا کے اس مکاشفہ کو آپ کے سامنے کھولا جائے۔ الوہیت کی ساری معموری۔ دور حاضرہ میں، موجودہ دور میں جب کلیسیاؤں کو دیکھتا ہوں، مسیحی لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو یقین جانے کہ یہ دل جو ہے انتہائی افسردہ ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے مسیحی لوگوں کی روحانی حالت دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ یقین جانے کہ کسی وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی، ہمارے مسیحی لوگوں کی جو روحانی حالت ہے وہ دن پر دن بگڑتی جا رہی ہے، دن پر دن خراب ہو رہی ہے، دن پر دن جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ سفید خون جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم اس کلام خدا کی پہچان میں گڑتے جا رہے ہیں، پیمانہ نیچے جا رہا ہے۔ اب یہ کلام جو ہے روشنی کے زمانہ میں ہمیں دیا تو جا رہا ہے، مگر ہمارے لوگوں کے اندر بدعتیں، ہمارے لوگوں کے اندر طرح کے غلط کام جو ہے وہ راج ہو رہے ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں، اور روحانیت کا پیمانہ دن بہ دن نیچے جا رہا ہے۔ اور یہ سبب ہے کہ جب ہمارے درمیان ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کو نہ تو اس کلام کے بھید کا پتہ ہے، اور نہ ہی خدا کے روح کا علم ہے، اور نہ ہی خدا کے روح میں ہے، چند باتیں ہیں جو یاد کی ہیں، اور انہی باتوں کو لے کر جب لوگوں میں جاتے ہیں تو لوگوں کا بربادی کے ساتھ ستیہ ناش روحانی حالت کا کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ جب خدا کا کلام سناتے ہیں تو بڑے زور سے، بڑے شور سے چلا کر، لیکن یہ تصویر جو ہے یہ بیان کرتی ہے تو بیڑے لیکن اندر بیڑیے ہے۔ اس وقت سے ہماری مسیحی کلیسیاں جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے۔ ہماری مسیحی کلیسیاں میں روشنی نہیں، کلام کو سنتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج خداوند نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم خدا کی الوہیت کی ساری معمولی جانیں۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہمیں مختلف طرح کے پاسبان ملتے ہیں۔ کوئی تو کہتا ہے کہ یسوع مسیح قربان ہو چکا ہے، اب جو مرضی کرو، بدی کرو، زنا کرو، بدکاری کرو، چوری کرو، ڈاکہ کرو، یسوع مسیح آپ کے گناہوں کے لیے قربان ہو چکا ہے، اب کچھ بھی کر لو، ہمارا کفارہ ہو چکا ہے، ہم تو جائیں گے پردوس کے اندر، ہم تو جائیں گے ہمیشہ کی بادشاہی کے اندر، ہم تو اس کے تخت پر بیٹھیں گے، کفارہ ہو چکا ہے۔ اور اس نے آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک کے لیے اس نے لہو بہا دیا ہے۔ اور ایسی ایسی باتیں جو ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اگر ان کا ہی تذکرہ کروں تو شاید آدھے دن سے بھی زیادہ ٹائم کا درکار ہو، مگر آج الوہیت کی ساری معمولی جانیں گے۔ بائبل مقدس میں سے ابھی ہم نے سنا کہ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ الوہیت ہے کیا؟ اگر ہم الوہیت کے لغوی معنی دیکھیں تو الوہیت کے لغوی معنی ہے خدائی، خداوندی، شان خداوندی، ربوبیت، معمودیت، یہ سارے لفظ مل کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں الوہیت۔ الوہیت میں خدائی پائی جاتی ہے، اور معمولی کے اندر بھرا ہوا لبریز آباد ہونا، یعنی کہ اگر ہم اس الوہیت کو دیکھیں تو خداوند کی خدائی جو ہے کسی کے اندر بھری ہوئی ہے، خداوند کی خدائی کسی کے اندر جو ہے لبریز ہے، خداوند کی خدائی کسی کے اندر آباد ہے۔ اور سالویشن آرمی کے اندر ہم جو سالویشن آرمی والے ہیں، سالویشن آرمی کے 11 عقائد ہے، اور سالویشن آرمی کا تیسرا عقیدہ ہے
साल्वेशन आर्मी 11 अकायद रखती है और 11 अकायद के मुताबिक कलीसियाओं में खिदमत करती है। और साल्वेशन आर्मी का तीसरा अकीदा है, हम मानते हैं कि खुदा में 3 अकनूम है, बाप, बेटा और रूह कुद्दस है। वो माहियत में गैर मुनकसिम और कुदरत और जलाल में यकसा है। ये तीसरा अकीदा साल्वेशन आर्मी लेकर कलीसियाओं में खिदमत करती है। साल्वेशन आर्मी मानती है कि खुदा में 3 अकनूम है, बाप, बेटा और रूह कुद्दस। वो माहियत में गैर मुनकसिम और कुदरत और जलाल में यकसा है। यानी कि साल्वेशन आर्मी यानी कि हम पाक तसलीस की तालीम देते हैं। हम मानते हैं कि बाप भी है, हम मानते हैं कि बेटा भी है, हम मानते हैं कि रूह कुद्दस भी है। यानी कि पाक तसलीस की तालीम देते हैं, पाक तसलीस का इकरार करते हैं और पाक तसलीस के मुतल्लक तालीम देते हैं और पाक तसलीस का इकरार करते हैं। मगर कुछ चर्चेस और कुछ उलमाओं जो है उनके दरमियान उनके बारे में जब इल्म हासिल होता है कि कुछ चर्च और उलमा जो है वो तसलीस को नहीं मानते, वो तसलीस के इकरारी नहीं। मगर हम यहाँ पर जितने बैठे हैं हम पुकार पुकार कर कहते हैं बाप, बेटा, रूह कुद्दस के नाम से आमीन। हम तमाम पुकार पुकार कर कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस के नाम से आमीन। और हम तमाम का इकरार है, हम तमाम का मानना है कि इंसान को खुदा बाप ने बनाया। पहले बाप की 26वीं आयत में देखें तो वहां पर लिखा है कि जब खुदा आदम को बनाने लगा और आदम को बनाने के लिए आवाज आती है, आदम को बनाने के लिए कलाम होता है और पैदाइश पहला बाप और उसकी 26वीं आयत में लिखा है फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत अपनी शबीह की मानिंद बनाए। अभी यहाँ पर खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाए, अपनी सूरत पर बनाए। आओ हम, इसका मतलब है कि खुदा अकेला नहीं है, खुदा अकेला नहीं है। खुदा ने इंसान को बनाने के लिए कहा बेटा रूह आओ हम, यानी कि तसलीस जो है आलने वाला पर असल से है। आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाए। आओ इंसान को अपनी सूरत दे, आओ इंसान को अपनी शबीह दे, आओ हम मिलकर इंसान को बनाए। और जब बादल का बुर्ज तैयार हो रहा था और बादल का बुर्ज जो था वो तामीरे नौ में था और लिखा है कि जब बादल के बुर्ज को देखने के लिए खुदावंद रब्बुल इज्जत की ज़ात-ए कुल ने इत्तेहाद किया तो तब पैदाइश की किताब 11वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है तो वहां पर लिखा है तो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तिलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझ सके। अभी यहाँ पे बादल के बुर्ज को बनाने के लिए जब उनको रोका गया तो आवाज आती है कि आओ हम वहां जाकर, इसका मतलब है कि खुदा अकेला वहां पर नहीं आया, खुदा कहता है बेटा और रूह आओ हम वहां पर जाकर उनकी जुबानों में इख्तिलाफ डालें। यानी कि पाक तसलीस का तस्करा हमें अहद अतीक से मिलता है। और पैदाइश 18वें बाब की 2री आयत में लिखा है कि जब खुदा इब्राहिम और उसकी बीवी को बरकत देने के लिए उसके पास आया तो लिखा है कि इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाकर देखी तो इब्राहिम ने नजर की और उसकी नजर में 3 लोग आए और उसने अपनी आंख उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं और वो उनको देखकर खैमा के दरवाजों से उनको मिलने दौड़ा और जमीन तक झुका और उसने उनको सीधा किया। अब इब्राहिम भी शहादत देता है कि मैं अपने खैमा के दरवाजा पर बैठा था और जैसे ही खैमा के दरवाजा से मैंने अपनी निगाह उठाई तो 3 मर्द मेरे करीब आ रहे थे, 3 मर्द मेरी तरफ चले आ रहे थे और मैंने उनको देखा और मैं अपने खैमा के दरवाजे से उठा और भागा और दौड़ा और जाकर मैंने अपना सर झुकाकर उनको सिजदा किया और उनकी खिदमत की। इसका मतलब है कि पाक तसलीस जो है अहद अतीक के अंदर, बाइबल के अंदर, ज़मानों के अंदर नबियों पैगंबरों के साथ जो है वो रफाकत करते हुए नजर आती है। और पाक तसलीस में 3 अकनूम पाए जाते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस। खुदा बाप है क्या? खुदा बाप क्या है? हम अक्सर अपने बच्चों को सिखाते हैं यीशु बाप, लेकिन खुदा बाप है। खुदा बाप है क्या?
खुदा बाप बेहद कामिल है, शायद उसको बयान करना हमारे बस की बात नहीं है, शायद उसका बयान जो है हमारे पास अल्फाज नहीं है। और यूहन्ना जो थे बाप की 24वीं आयत में अगर हम देखें तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप को मुतारिफ करवाया, खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप के मुतल्लक तालीम दी। और यूहन्ना जो थे बाप की 24वीं आयत में लिखा है खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। खुदा क्या है? और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार जो है रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। और अगर खुदा रूह है तो भी वो शख्सियत रखता है, अगर खुदा रूह है तो भी वो शख्सियत रखता है, उसकी शख्सियत है। और पुराने और नए अहदनामा में यानी कि पाक नविश्तों के अंदर, पाक सहायक के अंदर हम खुदा की मौजूदगी का बयान करते हैं, हम खुदा की मौजूदगी का इकरार करते हैं। खुदा अपने लोगों के पास आता है, जाता है और वो इंसानों से बातें करता और हम इंसान उस पर भरोसा रखते और खुदा हमारे दुखों को जानता, तकलीफों को जानता और हमारी मदद करता और हमें कामयाबियां अता फरमाता। और यहूदी खुदा के लिए मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करते थे, यहूदी डायरेक्ट खुदा का नाम नहीं लेते थे, यहूदियों ने खुदा के नाम रखे हुए थे और यहूदी कहते थे खुदा यहोवा यरी है, वो यहोवा नसी है, वो यहोवा शलोम है, वो यहोवा शमा है, वो यहोवा राफा है, वो कदीमुल अय्याम है, वो हय्युल कय्यूम है। क्योंकि यहूदी खुदा से डरते थे और इस कदर डरते थे कि खुदा का नाम लेते और डरते कि शायद हम मर जाएंगे, शायद हम हलाक हो जाएंगे। और इसलिए मत्ती की अंजील के अंदर बार बार जिक्र आता है आसमान की बादशाही, क्योंकि यहूदियों ने खुदा का नाम आसमान रखा हुआ था, वो खुदा नाम नहीं लेते थे, वो यहोवा नाम नहीं लेते थे, वो डरते थे कि कहीं हम मर न जाए, कहीं हम हलाक न हो जाए। और इसलिए यहूदियों के लिए जब मत्ती की अंजील लिखी गई तो लफ्ज इस्तेमाल किया आसमान की खुदा, आसमान की बादशाही यानी कि खुदा की बादशाही। और इसलिए बार बार जिक्र आता है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, यानी कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदा बेहद कामिल है, खुदा शख्सियत रखता है, खुदा हमारे घरों में, हमारे पास, हमारे खानदानों में आता है, जाता है, बात करता है, कामयाबियां देता है, हमें बढ़ाता है, आजाद करता है। खुदा बाप, खुदा बेटा, ये पाक तस्लीस का दूसरा अकनूम है, ये पाक तस्लीस का दूसरा अकनूम है खुदा बेटा। जिब्राइल फरिश्ता जब खुदा बाप की तरफ से कमारी मरियम के पास भेजा गया तो जिब्राइल सदीका मरियम से कलाम करता है और जिब्राइल सदीका मरियम से कहता है ऐ सदीका मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तो हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अब जिब्राइल ने सदीका को पैगाम दिया और जिब्राइल कहता है सदीका मरियम देख तो हामला होगी, तेरा बेटा होगा और रूह कुद्दस तुझ पर साया करेगी और देख जब तू एक बेटे को जनेगी तो उसका नाम यसू रखना, वो बुजुर्ग होगा मगर याद रखना कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और यूहन्ना की अंजील शरीफ के अंदर भी याद मिलता है और यूहन्ना की अंजील शरीफ के पहले बाब की पहली आयत में लिखता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के एक लोहे का जलाल है। इसका मतलब है कि बाप अलग है और जब जिब्राइल पैगाम लेकर आया तो बेटा जाहिर होता है और कहता है कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और यूहन्ना की अंजील शरीफ कहती है कि इब्तिदा में कलाम, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा और यही कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका जलाल देखा जैसे बाप के एक लोहे का जलाल। और यूहन्ना 10 से बाप के अंदर एक वाक्या कलम बंद है और लिखा है कि अहले यहूद की बड़ी भीड़ आपके पीछे पीछे रहती थी और हर वक्त आपके ऊपर ताने मारने के लिए, हर वक्त आपको पकड़ने के लिए, हर वक्त आपको गिरफ्तार करने के लिए मौके की तलाश में रहती थी और अहले यहूद आपके पीछे पीछे रहते थे। और अहले यहूद में खड़े होकर आपने कलाम दिया और आपने वहां पर बड़ी आवाज के साथ कहा कि मैं और बाप
जैसे ही आपने ये कलाम किया और जैसे ही आपके लबों से ये कलाम निकला, जैसे ही आपके लबों से ये कलमे निकले, तो यहूदियों ने जब सुनते ही यहूदियों पर गुस्सा तारी हो गया और यहूदियों ने अपने हाथों में पत्थर उठा लिए और यहूदी पत्थर उठाकर आपको संसार करना चाहते हैं, आपको कत्ल करना चाहते हैं, आपको मारना चाहते हैं। और आपने एली याहूद से कहा, तुम मुझे किस बात से कत्ल करते हो, किस बात से मुझे पत्थर मार मार कर संसार करते हो? मैं तो बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम तुम्हें दिखा चुका, मैं तो मुर्दे जगा चुका, मैं तो लंगड़े चला चुका, मैं तो अंधों को आंखें दे चुका, मैं तो हजारों भूखों को खाना खिला चुका, मैं तो तरह तरह के मोर्चे कर चुका, मैं तो मजरूहों को लगा चुका, मुझे किस काम के सबसे हलाक करते हो? तो एली याहूद कहते हैं कि हम तुझे तेरे कामों के सबसे हलाक नहीं करते। तो इंसान होकर अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, तो इंसान होकर अपने आप को खुदा कहता है, इस सवाल से हम तुझे हलाक करते हैं, इस सवाल से हम तुझे संसार करते हैं। तो तब आपने कहा कि मेरे कामों का यकीन करो ताकि जानो और समझो मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है और मैं और बाप एक है, मैं और बाप एक है। और यहां पर बेटे ने यहूदियों को बताया मैं और बाप एक है। और खुदा रुक अभी थोड़ी देर पहले इसके इल्म के मतलब बात हो रही और अच्छी बात है बताना चाहिए। अभी अगर कान खुले हो, आंखें खुली हो, तो यकीन करें ये नाचीज नहीं बोल रहा, रूह बोल रहा है। नाचीज नहीं बोल रहा, रूह बोल रहा है। और जब जब खुदा के खादमीन खुदावत के कलाम का बयान करते हैं तो रूह खुद जाहिर करता है कि मैं खादमों के अंदर से बोलता हूँ। और पाक रूह जो है वो तसलीस का तीसरा अकनूम है, यानी कि खुदा रूह कुद्दस है। और रूह कुद्दस के बारे में अमूमन सवाल किए जाते हैं और बहुत सारे सवाल किए जाते हैं और तरह के सवाल किए जाते हैं, मगर रूह कुद्दस भी शख्सियत रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि रूह कुद्दस शख्सियत नहीं रखता, मगर पाक सहायक के अंदर, पाक नबिश्तों के अंदर जाहिर है कि रूह कुद्दस भी शख्सियत रखता है। मगर बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि रूह कुद्दस को जब हम जानते हैं, जब रूह कुद्दस को हम पहचान लेते हैं, तो रूह कुद्दस हमसे बोलता है, यानी कि रूह कुद्दस हमसे बात करता है, रूह कुद्दस हमें तलाश करता है, रूह कुद्दस हमें गवाही देता है, हुक्म देता है, जाहिर करता है, वो कोशिश करता है, वो शिफायत करता है, वो जुम्मश करता है। और अभी खुदा का रूह यहाँ पर जुम्मश कर रहा है और रूह कुद्दस हमें सिखाता है और इन तमाम बातों से जाहिर होता है कि रूह कुद्दस शख्सियत रखता है, रूह हमसे बोलता है, वो कोशिश करता है, वो गवाही देता है, वो हुक्म देता है और वो शिफायत करता है, वो जुम्मश करता है, वो तरह के काम हमसे करवाता है। क्योंकि बाप की तरफ से यीशु मसीह की दरखास्त पर जब आपने फरमाया कि मैं बाप के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए दरखास्त करता हूं कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, यानी कि रूह कुद्दस है। और जब रूह कुद्दस दूसरा मददगार है तो मदद करने के लिए उसकी शख्सियत को हम पहचानते हैं और वो शख्सियत के तौर पर हमारी मदद करता, हमसे बोलता, हमें तलाश करता, गवाही देता, हुक्म देता, जाहिर करता, कोशिश करता, शिफायत करता, जुम्मश करता, सिखाता है। रूह कुद्दस खुदा का रूह, जिसके बारे में आपने कहा दुनिया का हर कुफर तो माफ किया जाएगा, मगर रूह के बारे में जो कुफर होगा वो माफ नहीं किया जाएगा। रूह के बारे में अगर कोई कुफर रखेगा, रूह के बारे में अगर कोई गलत कहेगा, रूह के बारे में अगर कोई गलत सवाल करेगा, रूह के बारे में अगर कोई तंज करेगा, अगर रूह का कोई मजाक उड़ाएगा, दुनिया का हर गुनाह मुआफ हो सकता है मगर ये गुनाह मुआफ नहीं होगा। रूह को तस्वीर का तीसरा कानून है। मगर हम तमाम खुदा की अलूहियत को जानते हैं, अलूहियत की सारी मामूली उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। अलूहियत का मतलब खुदाई, खुदाबंदी, शान खुदाबंदी और मामूली भरा हुआ, यानी कि खुदा की सारी खुदाई यीशु मसीह में मुजस्सम हुई है। खुदा की सारी खुदाई जो है वो यीशु मसीह में मुजस्सम हुई। या यूं समझे कि खुदा की खुदाई यीशु मसीह में आराम पजी है। खुदा की खुदाई जो है
अंदर जाहिर होती है। और इसलिए मुकद्दस पालूस रसूल फरमाता है कि वो अंधे के खुदा की सूरत है और तमाम मखलूकात से पहले मालूम है। और यूहन्ना 14 बाब में लिखा है कि फिलिप्पुस ने यीशु से कहा, ऐ आका, ऐ रबी, हमको बाप दिखा, ऐ उस्ताद, हमको बाप दिखा। और आपने फिलिप्पुस की तरफ अपनी नजरें मुनव्वर की और कहा, फिलिप्पुस, फिलिप्पुस, इतनी मुद्दत से मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुझे नहीं जानता। फिलिप्पुस कान खोल और आंखों से देख, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। बाप मुझ में रहकर काम करता है और बाप बेटे में जलाल पाता है। मैं बाप में, बाप मुझ में, बाप बेटे में जलाल पाता है। वो अंधे के खुदा की सूरत पर है क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो, जमीन की हो, देखी हो, अंधे की हो, या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई और वो सब चीजों से पहले और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। बाइबल मुकद्दस में पालूस रसूल बयान करता है कि आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, रियासतें हो, हुकूमतें हो, इख्तियारात हो, हर चीज जो है उसी के वास्ते बनाएगी और हर चीज उसी से बनाएगी और वो हर चीज से पहले था और हर चीज उसी में कायम रहती है। और कलाम और इंसान पुकार पुकार कर चिल्ला कर शहादत देते हैं और हम तमाम यहाँ पर जितने बैठे हैं हम तमाम चिल्ला कर शहादत देते हैं, हम तमाम नारे मार मार कर शहादत देते हैं। और कलाम मुकद्दस है और कलाम मुकद्दस की सदाकतें भी चिल्ला कर बयान करती है। पुकार पुकार कर अमीरों ने सहाय के अंदर और रिश्तों के अंदर शहादत दी है और हम तमाम भी करते हैं। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था और सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई और उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। और इसलिए अहले यहूद के दरमियान अब चिल्ला कर पुकार कर कहते थे, मैं मालूम मुकद्दस हूं, मैं खुदा का बर्रा हूं, मैं खुदा का इकलौता हूं, मैं रूह अल्लाह हूं, मैं कलमा खुदा हूं, मैं अल मसीह हूं और मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है क्योंकि खुदा की सारी खुदाई मुझ में मुजस्सम है। देखो मैं मुर्दे जिंदा करता, ये काम बाप करता है। देखो मैं लंगड़े चलाता, ये काम बाप करता है। देखो मैं शर्म के अंदर ठीक करता, ये बाप करता है। देखो मैं भूखों को खाना खिलाता, ये बाप करता है। खुदा की खुदाई मेरे अंदर है और मैं खुदा की खुदाई में तुम्हारे पास हूँ। दुनिया का कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई वली, कोई आलम, कोई पास्टर, कोई मुबश्शिर, कोई अगर ऐसे काम कर सकता है तो उसे मेरे सामने लाओ। मेरे अंदर तो खुदा की खुदाई है क्योंकि मेरे अंदर अल्लूहियत पाई जाती है और मैं अल्लूहियत से ही लाजर की कब्र पर गया। अल्लूहियत के वसीला से ही 4 दिन के मुर्दे को मैंने आवाज दी और मैंने कहा लाजर कब्र से बाहर था और अल्लूहियत की मामूरी मेरे अंदर थी और लाजर 4 दिन के बाद भी चलता हुआ कब्र के अंदर से बाहर मेरे कदमों में आया। मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। अले यहूद, अले ज़माना और दुनिया के हर इंसान और बशर सुन लो, मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है और अल्लूहियत सारी मामूली मेरे अंदर है। और मुकद्दस पालूस यही कहता है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत पर था और वो हर चीज से पहले मालूम था, हर चीज से पहले था। मुकाशवा की किताब में उसके पहले बाब में देखेंगे तो मुकाशवा पहले बाब में जब यूहन्ना आरब को यीशु का दीदार हुआ तो मुकाशवा पहले बाब में जैसे ही मुकद्दस यूहन्ना आरब ने आपको देखा और यूहन्ना आरब आपके कदमों में बढ़ता सके, लेकिन उससे पहले यूहन्ना आरब बयान करता है और फरमाता है
اور کہتا ہے اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم سا ایک شخص دکھائی دیا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے اور سونے کا سینے پر باندھے ہوئے تھا، اور اس کا سر اور اس کے بال خالص سون کی مانند برف کی مانند سفید تھے، اس کی آنکھیں شعلہ کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں خالص پیتل جیسے تھے جو بھٹی میں چلایا گیا ہو، اور اس کی آواز کے زور سے پانی کسی تیز آواز آتی تھی، اور جب میں اسے دیکھنے کے لیے اس کی طرف مڑا تو میں اس کے قدموں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر مجھ سے کلام کیا، اس نے کہا دیکھ میں مر گیا تھا اور اب اپنا آواز کے لیے زندہ ہو، دیکھ موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہے، اور دیکھ باپ نے زمین اور آسمان کا اختیار مجھے دے دیا ہے، باپ مجھ میں خدائی پاتا ہے، باقی الوہیت میرے اندر ہے، اور جب آپ نے یہ کلام کیا تو آپ کا یہ کلام زمانوں کو، بشر کو، قوموں کو، قبیلوں کو بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، اور آپ نے کہا افسس کی کلیسیا کو لکھ، آپ نے کہا پرگمبر کی کلیسیا کو لکھ، تیموتھوس کی کلیسیا کو لکھ، سمرنا کی کلیسیا کو لکھ، اور آپ نے کہا کہ کاشف اب محمد پورا کی کلیسیا سے بھی بیان کر کے میں خداوند خدا ہوں، اور میں ہی خداوند خدا ہوں، میں افضل سے ہوں، اور میں اب تک رہوں گا، اس سے پہلے کہ ابراہیم کا میں تھا، اور میں باپ کے ساتھ اور باپ کے ساتھ میں اعلیٰ کاریگر کے طور پر زمین اور آسمان کو بناتا، اور میں مولود مقدس اور میں روح اللہ ہوں، میں ہی خداوند خدا ہوں۔ الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہوتی ہے، اور جس یسوع کی پوجا پر سشم کرتے ہیں خدا کی خدائی اس میں ہے، اور اس نے کہا جہاں پر ایک یا دو یا تین میرا نام لیں گے میں وہاں پر حاضر ہوں گا، اور اس نے کہا کہ جنہوں نے مجھے چھیدا تھا جب میں آؤں گا وہ مجھے دیکھیں گے، اور اسی کا کلام فرماتا ہے کہ میں اس کی دائیں طرف ہوں، اور اب بادشاہی جو ہے اسی کی آنے والی ہے، اور ہم تمام اس کی بادشاہت میں، اس کی فردوس میں جانے کے لیے منتظر ہیں، اور اس نے آپ سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں، آج بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی یہ وعدہ ہو سکتا ہے سب سے خدا کرے یسوع کرے تو میرے ساتھ فردوس میں، اور فردوس کا مالک یسوع مسیح ہے۔ آئیے ہم سب اپنے سب کو چڑھائیں اور یہ فردوس